Good morning, friends. মই উত্তম বৰাই টিম স্পাৰ্টনৰ আজিৰ খণ্ডত আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিকভাৱে লগ জনাইছো। আজি আমাৰ মাজত আছে নৰ্থ লখিমপুৰৰ পৰা মিষ্টাৰ বিনয় বিশ্বাস। মই ডক্টৰ পলাশ পাঠক ছাৰক তেখেতক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। আজি আমাৰ মাজত আছে লখিমপুৰৰ পৰা মিষ্টাৰ বিনয় বিশ্বাস। তেখেতে খুব এজন সাকসেসফুল লিডাৰ ইন ভেষ্টিজ মাৰ্কেটিং লিমিটেডত তেওঁ ধুনীয়াকে কাম কৰিছিলে ভেষ্টিজত, আৰু তেখেতক বাকি ক'বলৈ প্ৰয়োজন নাই। আমি আজি মিটিঙত থকা প্ৰায়ভাগ সদস্যই তেখেতক খুব ভালকে জানো। আমাৰ খুব ধুনীয়াকে অকেলেফ কেয়াৰত তেওঁ আহিছে আৰু তেওঁ খুব ধুনীয়াকে অকেলেফ কেয়াৰত সাকসেস হিচাপে আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে দেৰি নকৰো, মই মঞ্চখন বিনয় বিশ্বাস ছাৰক দিছো আৰু তেখেতৰ পৰা আমি দুই আখৰমান শুনিবলৈ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো। থেংক ইউ বিনয় ছাৰ আৰু থেংক ইউ উত্তম ছাৰ। থেংক ইউ। এই মহামাৰী কৰোনাৰ যিটো কণ্ডিশ্যন চলি আছে ভাৰতবৰ্ষত বা পুৰা বিশ্বতে, আশা কৰো সকলো ভালেই আছে, সকলো ঘৰতে আছে আৰু আমি সকলো ঘৰতে থাকি পেলাই কেনেকৈ ব্যৱসায়টো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো তাৰ লগতে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম, বা তাৰ ওপৰত ডিছকাছ চলিয়ে আছে। ইমান দিন আমি সকলো ইটোৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিয়ে আছো। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, মোৰ নাম বিনয় বিশ্বাস। মই ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত 2017 চনৰ 10 আগষ্ট মই জড়িত হৈছিলো এটা ভাৰতবৰ্ষৰ কোম্পানীৰ লগতে, আৰু 2019 মে মাহলৈকে সেইটো কোম্পানীৰ লগতে জড়িত আছিলো। তাৰপিছত অকে লাইফ কেয়াৰৰ লগত জড়িত হলো। তাই সেইখিনিৰ মাজত কি কি হ'ল, কেনেকৈ কি কৰিলো, সেইখিনিৰ ওপৰতে মই কেইটামান ষ্টৰি আজি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকক। আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি কথা বুজিব পাৰিব যে ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কি হয়, কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ এচিভমেন্টছ আহে, কিয় নাহে এচিভমেন্টছ। কাৰণ কি, মই এতিয়ালৈকে ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এজন লাৰ্ণাৰ হিচাপে কাম কৰি আছো, শিকি আছো আৰু শিকাৰ মাজতে কাম কৰি গৈ আছো। এনেকুৱা কি কি শিকিব লাগে, বহুতখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছো, বহুতখিনি এতিয়ালৈকে অকে লাইফ কেয়াৰত এটা ভাল চেক ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই। কিয় কৰিব পৰা নাই সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম, যাৰ ফলত আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে কেনেকৈ চেক ডেভেলপমেন্ট কৰে। যিয়ে নহওক, সময় নষ্ট নকৰি পেলাই আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰো। एसेंशियल इन MLM, क्या जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग पे हम लोग को, ऐसा क्या काम करना चाहिए, ऐसा क्या करने से हम लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्री पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बारीकी से डिस्कस करेंगे। क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है, क्या समझते हैं हम लोग इसको। हालांकि लीडर समझते हैं ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 2 साल 3 साल काम करने से करोड़पति, अरबपति, फाइनेंशियल फ्रीडम सब कुछ मिल सकता है। लेकिन क्या ये सच है? ऐसा अब तक कितने आदमी को मिला है और कितने आदमी को मिल रहा है? हम लोग अगर देख पाते हैं तो चंद लोग हैं जो इस इंडस्ट्री पे आके काम करके अच्छा इनकम, अच्छा रेस्पेक्ट, आज फाइनेंशियली फ्रीडम सब कुछ उन लोग को मिल रहा है। और उन लोगों ने ऐसा क्या किया जिसके बदौलत आज उन लोग के पास ये सब कुछ है। तो हम आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री इतना जरूरत क्यों है। हर लीडर्स, हर डायरेक्ट सेलर बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री से बेहतर इंडस्ट्री आज के टाइम पे है ही नहीं। किसी के मुंह में भी देखिएगा, हर कोई बोलता है कि इस टाइम को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बेहतर इंडस्ट्री है ही नहीं। ऐसा क्यों बोलते हैं, थोड़ा अच्छे से जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर को आप लोग हर कोई जानते हो। उन्होंने क्या बोला, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 2001st century which must be joined by every young and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। यानी अगर हम 2001st सेंचुरी में अगर इस पे ज्वाइन नहीं करते, इस पे अगर काम नहीं करते हैं, तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा क्यों? फिर देखते हैं बिल गेट्स ने क्या कहा, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? अगर उनको फिर से दोबारा मौका मिलता है कि फिर से नया से शुरुआत करने को, तो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग? उन्होंने बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। तो ऐसा क्या वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही उन लोगों ने चूज करना चाहते हैं? देखा जाए तो आज का जो हालत है, और ऊपर से अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का महामारी का वजह से, कितना सारा लाखों करोड़ों एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं। रियल एस्टेट सेगमेंट जो है, आप गौर कीजिएगा, पूरा बिजनेस करप्ट हो चुका है। रियल एस्टेट पूरा बिजनेस, करोड़ों बंदा है जो इस इंडस्ट्री पे काम करके आज उनका घर चलता है। करोड़ों एम्प्लॉय है जो रियल एस्टेट में काम करके आज उन लोग जो भी कर रहे हो, जो इनिशियल उन लोग का फैमिली चलने के लिए जो जरूरत है, सब कुछ आज बेकार बन चुका है।
अब देखा कि गौर कीजिएगा ट्रेवल एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे, होटल्स होटल्स का बिजनेस पूरा करप्ट हो चुका है, एयरलाइंस बंद है, ट्रेवल एजेंसीज बंद है, हॉलिडे हॉलिडे पैकेजेस वगैरह पूरा बंद है, लोकल टैक्सी वगैरह रिक्शा वगैरह पूरा बंद है। ये तो हो चुका है कोविड-19 का वजह से। लेकिन 2001st सेंचुरी में ऐसा क्या है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेट 135 करोड़ आबादी है इंडिया पे, और सबको कुछ ना कुछ काम का जरूरत है, और सब अगर कुछ ना कुछ काम करेंगे, ऐसा क्या काम है जहाँ पे इतना सारा आबादी काम करके खुद घर निभा सकते हैं? देखा जाए तो आप इंडस्ट्रियल के बारे में बात करेंगे तो हर इंडस्ट्री में देखिएगा कट ऑफ कर रहे हैं, इंसान का जॉब कट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा मशीनरी, इतना ज्यादा रोबोट्स आ चुके हैं, इंसानों का काम अभी है नहीं। एक इंसान जितना अच्छे से काम करता है उससे बेहतर एक रोबोट काम कर सकते हैं। एक इंसान जितना अच्छा से काम करते हैं उससे ज्यादा एक मशीन अच्छे से काम करते हैं। एक इंसान को जितना सैलरी चाहिए एक रोबोट को उतना सैलरी की जरूरत नहीं है। एक इंसान को जितना मेडिकल, जितना फैसिलिटी जरूरी है एक रोबोट को, एक मशीन को उतना जरूरी है नहीं। हम खुद आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले बाय पोस्ट करते थे, किसी को अगर कुछ मैसेज करना पड़ता था, कितना आदमी का जॉब था, एक चिट्ठी लिख के जाता था, वहां में चिट्ठी को लिखता था, वहां में चिट्ठी कहाँ जाएगा, एक आदमी को काम करता था, फिर चिट्ठी को पहुंचाता था, फिर चिट्ठी को होम डिलीवरी करता था। अभी हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे 2 सेकंड पे एक मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, चला गया मैसेज। कितना सारा इंसानों का जॉब मैंने खुद खाया, आपने खाया। तो ये जो देश आगे बढ़ रहा है, इस सिस्टम पे अगर हम लोग चलते हैं तो लाखों करोड़ों और जॉब जाने वाला है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे इंसानों का जरूरत है। गौर कीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ में जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है, जैसे गौर कीजिएगा फूड सप्लीमेंट्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, ज्यादातर फूड सप्लीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे इंसान अगर माउथ एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो फिर भी कभी भी ये प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेंगे। आप भी जब फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था, आपको आपका कोई इंसान आके आपको शायद बताया था, कोई जानवर या सॉरी या कोई मशीन या कोई रोबोट्स या कोई मैसेज के द्वारा नहीं। क्योंकि मैसेज के द्वारा हम लोग को कभी भरोसा नहीं जीत पाते, चाहे एक रोबोट्स हो चाहे मशीन हो, मशीन कभी भरोसा नहीं जीत पाता। तो फूड सप्लीमेंट सेल करने के लिए सबसे पहला बात, भरोसामंद आदमी से ही हम लोग फूड सप्लीमेंट खरीदते हैं, और इंसान तभी जरूरत होता ही होता है। अगर इंसान नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री चलना मुमकिन ही नहीं है। और बाकी जितना इंडस्ट्री है इस दुनिया में, हर इंडस्ट्री पे दिन ब दिन दिन ब दिन इंसानों का जरूरत कमती घटते 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 ना के बराबर। आज आप डिफेंस में जाइए तो आज से 2 साल, आज से 3 साल पहले जितना जॉब हर साल निकलता था, आज के डेट में उतना जॉब है नहीं। आज से 10 साल पहले एक बैंक में जितना जॉब निकलता था, अभी उतना बैंक में जॉब नहीं है। एक स्कूल में जितना टीचर जरूरी था, आज से 10 साल 20 साल बाद दिखेगा स्कूल में भी टीचर का जरूरत दिन ब दिन घटते जाएगा। मेडिकल में जितना डॉक्टर जरूरी था, आज से 10 साल बाद दिखेगा मेडिकल में भी इतना इक्विपमेंट्स, इतना मशीनरी आ चुका होगा, डॉक्टर्स का भी जरूरी है नहीं। सुना है दुबई में पुलिस स्टेशन में भी फिजिकल पुलिस का जरूरी नहीं होता। तो सोचिए हम लोग किस देश में है, हम लोग किस देश से, हम लोग कहाँ से कैसे बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर ऐसे बढ़ोतरी होते रहे तो आने वाला 10 साल में जॉब तो रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो हम लोग करूँ तो क्या करूँ? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे इंसानों का जरूरी है, यहाँ पे मशीन कभी काम नहीं कर पाता। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे और गौर से आज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बारे डिस्कस करने के लिए सीनियर्स लोग हैं, यूट्यूब में भी आप लोग अच्छे से देख सकते हो, यूट्यूब को फॉलो कीजिएगा, अच्छे से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों जरूरी है आप अच्छे से वहां पे देख पाओगे। तो आज हम, मेरा मेन टॉपिक है एसेंशियल इन एमएलएम। मैं आज बात करना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या जरूरी है ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। तो पहले समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या चीज। हम लोग यहाँ पे बहुत सारा लीडर्स यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं कंपनी, ज्वाइन करते हैं, 2 महीना 3 महीना काम करते हैं, 4 महीना काम करते हैं, छोड़ते हैं, कंपनी अच्छा नहीं है, पैसा नहीं मिलता, बेकार। तो आज हम बारीकी से समझेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में कि यहाँ पे ऐसा क्या जरूरी है जिसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मैं मेरा लास्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी जरा बताऊंगा आपको, आप बहुत सारा रिलेट कर पाएंगे कि मैंने ऐसा क्या गलती किया और मैंने अच्छा काम किया, वो अच्छे काम के वजह से मुझे अच्छा क्या मिला, और मैंने जो गलती किया वो गलती की वजह से मैंने क्या खोया। मैंने जो गलती किया ये अगर आप अच्छे से समझ पाते हो तो वो गलती आप अगर नहीं करते हो तो शायद आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा खुद को रिलेट करने के लिए कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक सेल्स का इंडस्ट्री है। यहाँ पे इंसान को जोड़ने से पैसा नहीं मिलता,
यहाँ पे करना क्या पड़ता है, सेल्स। ये इंडस्ट्री सेल्स का इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी हमको पैसा कब देता है, जब मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, जब मेरा टीम में प्रोडक्ट सेल होता है। अगर सेल्स नहीं होगा तो बिजनेस जनरेट नहीं होगा, अगर बिजनेस जनरेट नहीं होगा तो मुझे कंपनी कमीशन नहीं देगा। तो इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए सबसे पहला बात, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अब ये प्रोफेशनल है क्या चीज? प्रोफेशनल प्रोफेशनल एक ऐसा चीज है, जैसे कि मान लीजिए मैं भी बैडमिंटन खेलता हूँ, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खेलते हैं। मैं बैडमिंटन इसलिए खेलता हूँ, मैं टाइम पास करने के लिए खेलता हूँ, या मेरा फिजिकल थोड़ा बदन सेहत ठीक रहे, या मैं कुछ खेल के मजा आता है इसलिए मैं खेलता हूँ। बट साइना नेहवाल उसको एज ए प्रोफेशनल खेलते हैं। मैं भी बहुत क्रिकेट खेला, विराट कोहली भी क्रिकेट खेलते हैं। बट मैंने जो क्रिकेट खेला, ये खेतियों में क्रिकेट खेला, गांव में क्रिकेट खेला, इस खेल को प्रोफेशनल नहीं बोलते। बट विराट कोहली जो खेलते हैं उससे कहते हैं प्रोफेशनल। एक डॉक्टर्स होता है प्रोफेशनल, एक इंजीनियर्स होता है प्रोफेशनल। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको पैसा, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो जो मिलता है, अगर वो आपको चाहिए तो आपको प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा। टू टाइप ऑफ प्रोफेशनल होता है मेरे ख्याल से, मैंने कई किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने खुद रियलाइज किया। एक प्रोफेशनल ऐसा होता है जिस प्रोफेशनल के बारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, डिग्री जरूरी होता है। जैसे कि डॉक्टर्स, डॉक्टर्स बनने के लिए आपको डॉक्टर डिग्री चाहिए, आपको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। इंजीनियर, इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ेगा, तो आपको वहां पे सर्टिफिकेट्स देगा, सर्टिफिकेट्स के माध्यम से आपको जॉब मिलेगा। वो एक प्रोफेशन होता है। और एक प्रोफेशन होता है जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स का जरूरी नहीं होता, लाइक आपको क्रिकेट, लाइक आप रनिंग। क्रिकेट के लिए आपको किसी कॉलेज से आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप कैसे खेलते हो, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक प्रोफेशन है। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए किसी कॉलेज का सर्टिफिकेट्स का जरूरी नहीं है, इसीलिए कोई भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि कोई भी क्रिकेट खेल सकता है, जैसे कि कोई भी हाई जंप मार सकता है, मगर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, कोई भी इंजीनियरिंग चार्टर अकाउंट का काम नहीं कर सकता। मगर अगर आप इस प्रोफेशन में काम करते हो, जिस प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन का जरूरी नहीं होता है, उस प्रोफेशन में काम करने के लिए क्या होता है, बहुत सारा इंसान देखिएगा, क्रिकेट खेलने के लिए लाखों इंसान आता है, मगर डॉक्टर बनने के लिए लाखों इंसान नहीं आता। क्योंकि डॉक्टर बनने से पहले आपको वहां सर्टिफिकेट्स का जरूरी होता है। मगर अब जब क्रिकेट का बात करते हैं, लाखों आ जाता है क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक उसी तरह लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करके काम करने के लिए। बट वो लाखों क्रिकेटर्स में से चंद लोग ही, 11 लड़के इंसान ही, 11 बंदा ही इंडिया को प्रमोट करते हैं। ठीक उसी तरह चंद लोग ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा कमाया जाता है। तो इस इंडस्ट्री को और बारीक से समझने के लिए मैं और थोड़ा डीपली जाता हूं। इस प्रोफेशन में भी जैसे क्रिकेट खेलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा मैच खेलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, गांव से लेके डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट, स्टेट से लेके आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ही आप एक इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हो। और जब तक आप एक इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बनते, तब तक आपको क्रिकेट से जो चीज मिलता है, क्रिकेट प्रोफेशन से जो रिस्पेक्ट, जो फेम मिलता है, तब तक नहीं मिलता एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर को। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आप ज्वाइन करने से कुछ नहीं मिलता। इस इंडस्ट्री में भी आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको पहले घर के सामने के आसपास लोगों को सेल करना पड़ेगा, इसके बाद आपको गांव में, इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते 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 जब आपका एक बड़ा टीम बन जाएगा, जब आपका बड़ा चेक आएगा, तभी आपको वहां से एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बोला जाएगा। तभी आपको पैसिव इनकम, तभी आपको रिस्पेक्ट, तभी आपको टाइम फ्रीडम, जो कुछ मिलता है बोलता है इस इंडस्ट्री पे सब कुछ मिलेगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला जरूरी क्या होता है। फर्स्ट फर्स्ट ये इंडस्ट्री को जरूरी होता है सेल्स। जब तक आपके टीम में सेल्स जनरेट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपके लाखों, 2 लाख, 10 लाख, 50,000 करोड़ का टीम होने से भी आपके टीम में सेल नहीं है, जीरो। तो हम लोग सेल पे कॉन्सेंट्रेट कभी नहीं करते हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्रेजेंटेशन, हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं आदमी को ज्वाइन करने के लिए, हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं आदमी को पटाने के लिए, हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं आदमी को कैसे उसको समझा के आके ज्वाइन कर दो। बट सर,
समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये पहला स्टेप है सेल्स। आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे सीखना पड़ेगा सेल्स, कैसे एक प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। जब तक मैं प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा तब तक बिजनेस जनरेट नहीं होगा। फर्स्ट मुझे करना क्या है, मुझे सेल सीखना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे, ये प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाता है। जब मैं सेल करूंगा तब मुझे बिजनेस जनरेट होगा। उसके बाद टीम बनाना पड़ेगा, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग को सीखना पड़ेगा सेल्स के बारे। तो सेल्स के बारे आप नोट कर लीजिए, सेल्स कैसे किया जाता है उसके बारे आप अच्छे से सीखे। मैं आपको इतने अच्छे से नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। मैं अभी जो आपको बोल रहा हूँ ये मेरे तजुर्बे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से सेल्स नहीं आता, इसलिए मैं आज बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलर नहीं बन पा रहा हूँ। अगर मुझे एकदम इंटरनेशनल लेवल पे सेल्स करना आता, अगर मैं बहुत अच्छा होता सेल्स पे, तो शायद आज के आपके बीच में मैं नहीं होता, मैं अभी बहुत ऊपर लेवल पे होता। आज असम में, नॉर्थ ईस्ट में जितने अच्छे अच्छे डायरेक्ट सेलर्स है उन लोग के लेवल पे मैं होता। आज हम लोग के ओकेला करके अगर बात करते हैं, आज ध्रुवज्योति कश्यप सर सेल्स में देखिएगा किस तरह से सेल करते हैं। सेल्स मीन सिर्फ ओनली प्रोडक्ट नहीं, वो जो बात करते हैं क्या स्वीट, कितना सुंदर से बात करते हैं। कोई भी गुस्सा नहीं करता उनके बातों पर। कोई भी अगर गुस्सा से, नाराजगी से बात करते हैं फिर भी सर उसको टैकल कर पाते हैं। क्या क्वालिटी है सेल्स। सेल्स एक ऐसा क्वालिटी है, आप कुछ भी किसी से भी कभी भी कुछ भी करवा सकते हो। तो इस ये सेल्स जो क्वालिटी है, ये जो सेल्स का स्किल है, ये जब तक हमारा डेवलप नहीं होगा तब तक हम लोग खुद को चेक नहीं आ रहा, बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा बोल के कुछ फायदा नहीं। हम लोग को सेल्स स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, सेल के बाद जब आप सेल सीख जाएंगे, इसके बाद आप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में एक स्टेप आप दे पाते हो। फर्स्ट स्टेप सेल्स आप थोड़ा बहुत कर पाए, आपका फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप, अभी आपको यहाँ पे गोल सेट करना पड़ेगा। अभी मैं बताना चाहूंगा, अभी यहाँ पे कितने पार्टिसिपेट है मैंने चेक नहीं किया। मुझे मालूम है यहाँ पे जितना भी पार्टिसिपेट है बहुत कम पार्टिसिपेट है जिसका चेक 1 लाख से ज्यादा होता होगा, या शायद ही कोई होता होगा। 1 लाख से बड़ा चेक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गोल सेट नहीं है। आप यहाँ पे जितना भी खुद को पूछिए, आप खुद को सवाल कीजिए, क्या मेरा गोल सेट है? क्या मैंने गोल सेट किया है? क्या मैंने गोल सेट, 2 टाइप ऑफ गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। मैं आज क्या करने वाला हूँ, मैं आज से 1 हफ्ता बाद में क्या करने वाला हूँ, मैं आज से 1 महीना बाद में क्या करने वाला हूँ, आज से मैं 1 साल बाद में क्या करने वाला, आज से मैं 10 साल बाद में क्या। विदाउट गोल सेट कुछ भी नहीं होगा। हम जब डिनर करते हैं फिर भी हम लोग गोल सेट करते हैं, मैं अभी डिनर खाने जाऊंगा। अगर मैं नहीं सोचता हूँ डिनर खाने जाऊंगा, मेरा डिनर भी कंप्लीट नहीं होता। सर मैं नहाने नहीं जा सकता हूँ अगर मैं गोल सेट नहीं करता हूँ। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अब नहाने जाऊंगा, मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा, मुझे नहाने जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं सोचता हूँ 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक आप नहीं नहा पाओगे। तो गोल सेट कितना इंपॉर्टेंस है। आप घर से निकालते हैं कहीं पे जाने के लिए, मैं घर से निकालता हूँ कहीं पे, पहले डेस्टिनेशन सिलेक्ट करता हूँ। वो डेस्टिनेशन क्या है? गोल। मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ सब्जी खरीदने के लिए, मैं पहले घर से सोच के जाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, सब्जी मंडी जा रहा हूँ। वो सब्जी मंडी जा रहा हूँ उसी को कहते हैं गोल। मैं कुछ भी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ कहाँ पे जा रहा हूँ, लखीमपुर जा रहा हूँ, गुवाहाटी जा रहा हूँ, तेजपुर जा रहा हूँ, कहीं में भी जा रहा हूँ, उसी को कहते हैं गोल। अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ, हम लोग हर कोई गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं आजकल। गूगल मैप के बिना आदमी को तो जीना ही मुश्किल हो चुका है। मैं भी अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कहीं में भी जाता हूँ गूगल मैप गूगल मैप गूगल मैप। विदाउट गूगल मैप के इतना आसान कर चुका है। गूगल मैप में पहले आपको डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना पड़ता है, आप कहाँ जाएंगे। आप अगर डेस्टिनेशन सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो गूगल में भी आपको कहीं नहीं ले जा पाएंगे। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं एक टिकट खरीदने के लिए, आपको बोलना पड़ता है कहाँ आप जाओगे, आपको पूछता है आप कहाँ जाओगे सर। आप अगर नहीं बोलते, आप कहीं भी कभी मुझे टिकट दे दीजिए, क्या आप टिकट देंगे आपको? गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जियो, जो जो बंदा ने गोल सेट किया है, चाहे किसी भी लक्ष्य का क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल का सोच रहा मैं अच्छा रिजल्ट करूंगा, वो अच्छा रिजल्ट करूंगा वही गोल सेट है। जब सोचेंगे कि मैं अच्छा रिजल्ट करूंगा तभी वो अच्छे से पढ़ेगा। अगर वो रिजल्ट के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं तो पढ़ने का बात ही नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे हो क्या रहा है, हम लोग काम तो कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, रोज आदमी को बोलते हैं, रोज काम करते हैं, रोज मीटिंग अटेंड करते हैं, मगर क्यों करते हैं किसी को नहीं मालूम। सबको पैसा चाहिए,
फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो गोल सेट नहीं होता। गोल सेट क्लियर होना चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ, थोड़ा बाद में लखीमपुर पहुंचूंगा, वहां से वो मेडिकल जाऊंगा, वहां से वो खरीदूंगा, वहां से क्लियर, तभी वहां जा पाते। अब घर से निकलते हो, कहाँ जाऊंगा कुछ नहीं मालूम, क्या आप जा पाओगे? तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फर्स्ट गोल क्लियर कीजिए, और ये गोल आपको ही करना पड़ेगा, कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन आपको नहीं कर देगा, क्योंकि आपको मालूम है आपने क्यों ज्वाइन किया, आपने इस इंडस्ट्री पे को क्यों ज्वाइन किया, आपको मालूम है, उसको क्लियर कीजिए। जब तक आपका गोल सिलेक्ट नहीं होगा, गोल अगर क्लियर नहीं होगा, तब तक नामुमकिन है इस बिजनेस में आप एक स्टेप देने के लिए, सिंगल स्टेप आपका नहीं होगा। सिंगल गोल को बोला जाता है फ्यूल ऑफ लाइफ। गोल एक ऐसा चीज है, आदमी लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारा सुना है, मोटिवेशन अभी बहुत सारा चल रहा है, अभी यूट्यूब में भी खुलिएगा, मैं मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, मोटिवेशन मोटिवेशन किसको जरूरी होता है, मोटिवेशन आता कहाँ से? देखिए सक्सेसफुल पीपल, जो बंदा आज अच्छा पैसा कमा रहा है, उनको मोटिवेशन का जरूरी नहीं होता, उन लोग दूसरे को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन आता है आपको गोल से। मान लीजिए आपका एग्जाम है, आप क्लास 10 का आप एग्जाम देना चाहते हो, आपने क्लास 10 का एग्जाम दे चुका है, तो क्लास 10 का जब आप एग्जाम दिया था, आपका जब डेट फिक्स हो चुका था कि इस डेट को मेरा ये एग्जाम है, ये डेट को मेरा मैथ्स का एग्जाम है, जब आपका डेट फिक्स हो चुका था, तब से आपका पढ़ाई ज्यादा फास्ट हो चुका था आई थिंक। जब जब आप वो डेट देखते हो, आपका पढ़ने का स्पीड और तेजी से होते होते जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा है क्लियर कि उस डेट को मेरा ये एग्जाम है, अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो मेरे पास टाइम नहीं है। मोटिवेट वो डेट आपको करेगा, आपका गोल आपको मोटिवेट करेगा। अगर किसी को बाहर से मोटिवेशन का जरूरी हो रहा है, तो वो बंदा ट्रैक में अभी तक आया ही नहीं, तो वो बंदा उसका गोल सेट नहीं किया है। मोटिवेशन तब तक जरूरी है तब तक आप गोल सेट नहीं किया, अगर आपने गोल सेट कर चुका है तब तो आपको मोटिवेशन का जरूरी है ही नहीं। गोल सेट बहुत एसेंशियल चीज है, समझ लीजिए, रामबाण है ये। मोटिवेशन गोल सेट से ही निकलता है। अगर गोल सेट के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी मिला, तो आप लोग गोल सेट के बारे यूट्यूब में सर्च कीजिए, बहुत सारा गोल सेट कैसे किया जाता है, गोल सेट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको याद दिलवाना चाहता हूँ। मैं अगर आपको समझाने के लिए परफेक्ट होता तो शायद आज मेरा चेक बहुत होता, बट मैं जो गलती किया हूँ वो गलती मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलती आप लोग में ना हो। गोल सेट का क्या रीजन है गोल सेट करना, गोल सेट से क्या फायदा होता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सिर्फ आप यूट्यूब में व्हाट इज गोल सेट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट अस, आप मारिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट गोल सेट के नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट है आपका अपलाइन। अपलाइन बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड सुन के, अपलाइन। गुरु क्या होता है अपलाइन? जब आप गोल सेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको जाना है, मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, मेरा घर है लखीमपुर में, मुझे जाना है तेजपुर, मुझे रास्ता नहीं मालूम, मैंने क्या किया, गूगल मैप में डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया तेजपुर, वो क्या हुआ मेरा गोल सेट। गूगल मैप ने क्या किया, मुझे रास्ता दिखा दिया, वो है मेरा अपलाइन। अपलाइन आपको रास्ता दिखा देगा, जाना कैसे है, किस तरीके से जाना है, कहाँ पे ट्रैफिक जाम है, कहाँ पे बारिश हो रहा है, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता खराब है, मगर जाना आपको है। अपलाइन, ये अपलाइन का जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। ये अपलाइन, अभी यहाँ पे जितने लीडर्स है, मैं ऐसा बहुत लीडर्स को जानता हूँ, बहुत डायरेक्ट सेलर को जानता हूँ, हर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता अपलाइन से। आज ये इंडस्ट्री में अपलाइन का जरूरत है, बहुत बहुत बहुत। हर कोई चाहता है मैं काम करूं। आज जितना लीडर्स किसी ना किसी कंपनी को आज बदनाम करता है, खराब बोलता है, क्यों खराब बोलता है, वो एक ही वजह है, अपलाइन का वजह से। कोई बंदा किसी के साथ जोड़ा, उसको बहुत सपना दिखाया गया, ये होगा वो होगा वो होगा, थोड़ा दिन बाद में वो बंदा छोड़ चुका है, और जिसने छोड़ा है उसका डाउनलाइन
आज मार्केट में बैकबाइटिंग करता है। गलती किसका था? वो बंदा का नहीं था, गलती था वो अपलाइन का। वो अपलाइन का वजह से आज वो जो सपना देखा था वो सपना में पानी गिर चुका है। हर कोई चाहता है एक अच्छा अपलाइन। अपलाइन का कमी है सर इस देश में, इस दुनिया पे। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितना, जैसे कि मान लीजिए एक बैंक में जितना एम्प्लॉय चाहिए, जब तक वो एम्प्लॉय फुलफिल नहीं होगा तब तक बैंक एडवर्टाइजमेंट निकालते रहेगा कि मुझे इतना एम्प्लॉय चाहिए। जब तक एक स्कूल में जितना टीचर का रिक्वायरमेंट है, जब तक वो टीचर रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट करते रहेंगे। ठीक उसी तरह अपलाइन जितना जरूरी है आज इस देश में, उसका 1% नहीं सर, 0.5% भी अपलाइन है नहीं। हर कोई चाहता है मैं एक अच्छा इनकम करूं, हर कोई चाहता है मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए, हर कोई चाहता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मैं काम करके एक अच्छा घर, अच्छा गाड़ी लूं, रिस्पेक्ट मिले। हर कोई चाहता है मुझे एक अच्छा अपलाइन मिले। खुद से पूछिए क्या आप नहीं चाहते हो कि अच्छा अपलाइन? हर कोई चाहता है अच्छा अपलाइन। अगर अपलाइन का कमी है, क्यों हम खुद एक अच्छा अपलाइन बन नहीं पाते? क्या हम खुद एक अच्छा अपलाइन बन सकते हैं? अगर मैं खुद एक अच्छा, मार्केट में बिजनेसमैन वही होता है जो मार्केट में जो चीज का नीड रिक्वायरमेंट होता है वो काम करे। आज टाटा के बात किया जाए, टाटा गाड़ी भी बिक्री करता है, टाटा नमक भी बिक्री करता है, टाटा मसाला भी बिक्री करता है। बिजनेसमैन वही होता है जो चीज जब जरूरत होता है वो चीज को रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। देखा जाए तो इंडस्ट्री में अभी बहुत लाखों करोड़ों अपलाइन का जरूरत है टीम को गाइड करने के लिए। अगर बात करें तो ओके लाइफ केयर का, यहाँ पे सब अपना ही आदमी है, बात करता हूँ खुल के, बुरा मत मानिएगा, सबको बोलता हूँ सॉरी, पहले से बोल लेता हूँ। आज हम लोग का जो टीम है नॉर्थ ईस्ट का ओके लाइफ केयर का, अपलाइन नहीं होने का वजह से ये हाल है। आपको नहीं लगता यहाँ पे ऐसा ऐसा लीडर्स है जो 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा कमा के रनिंग इनकम, ऐसा नहीं है कि हाँ आज ऐसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा हाल हो रहा है कि किसी को आप पूछिएगा वो उसका हाईएस्ट पे आउट बता देता है कि मैंने इतना कमाया था, इतना कमाया था। उतना उन लोग का लेवल होता है, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, पाल्स, ब्ला 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 लेवल होता है। और हम लोग सोचते हैं ये उसका ये लेवल है, मतलब वो कितना बड़ा लीडर है। मगर उसका चेक देखिएगा, उसका 6 महीने से 3,000 से ऊपर चेक नहीं है। हम लोग उसको जब देखते हैं बहुत बड़ा लीडर सोचते हैं, वो भी एक अपलाइन का तलाश में है। हर कोई एक अच्छा अपलाइन का तलाश में है। अगर आप एक अच्छा अपलाइन बन सकते हो, अगर आप एक इथिकल अपलाइन बन सकते हो, अगर आप एक जेन्युइन अपलाइन बन सकते हो, तो ये इंडस्ट्री में आप राज कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम ये है कि अपलाइन बनने के लिए तो मुझे एक अच्छा अपलाइन चाहिए, मुझे कौन सिखाएगा? अगर मैं खुद सीखना चाहता हूँ, जो काम 2 साल जरूरी है उसको तो मुझे 10 साल लग जाएगा। अगर मेरा बात करूँ, जिस जब मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया था, मेरा बहुत वंडरफुल अपलाइन था मेरा पास। मैं आज फील करता हूँ जब मम्मी पिताजी जिंदा होता है ना, तब उन लोग का रियलाइज नहीं होता, फील नहीं होता। जब वो साथ में नहीं होता है तब फील होता है मेरा मम्मी मेरा कितना जरूरी था, मेरा पिताजी मेरा कितना जरूरी था। जब मेरा पास अपलाइन था तब मैंने नहीं सोचा ये अपलाइन मुझे कितना मुझे हेल्प करता है। बट अब मेरे पास जब अपलाइन नहीं है तब मैं फील कर पा रहा हूँ मैं वो अपलाइन मुझे कितना जरूरी था। तो आप भी अगर एक अच्छा अपलाइन ढूंढ रहे हो, अगर आप भी सोचते हो मुझे एक अच्छा अपलाइन चाहिए, तो आप एक अपलाइन चुन लीजिए। कैसे चुनेंगे, कैसा क्या है अपलाइन चुनने का भी कुछ सिस्टम होता है, वो सब भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अभी इतना आसान हो चुका है, देखिए कुछ भी क्वेश्चन का जवाब हम लोग को यूट्यूब में मिलता है, लाखों आंसर मिलता है। आप खुद चॉइस कर लीजिए कौन सा आंसर आपके लिए सुइटेबल होगा। मगर जल्द से जल्द आपको एक अपलाइन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपके पास अपलाइन नहीं है तो आप एक अच्छा अपलाइन नहीं बन सकते हो। आपको दिखाने वाला है नहीं आप किस रास्ते से जाना चाहते हो, आप किस रास्ते से जाने से उस मंजिल तक पहुंच सकते हो। मैं कभी तेजपुर पहुंच गया नहीं हूँ, बट मुझे तेजपुर जाना है। मैं कभी करोड़पति नहीं बना हूँ आज तक, मैं कभी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का मालिक नहीं बना हूँ, कभी मैं एक खुद का घर का मालिक नहीं बना हूँ। मगर मैं चाहता हूँ बनने के लिए। तो मुझे कौन सिखा सकेगा? किसको मालूम है कि एक बीएमडब्ल्यू का मालिक कैसे बना जाता है, करोड़पति कैसे बना जाता है? जो बंदा करोड़पति है उसी को मालूम होगा करोड़पति कैसे बनता है। तो एक अपलाइन मुझे बहुत जरूरी है, आपको बहुत जरूरी है। तो एक अपलाइन सही चुनाव
आपकी जिंदगी बदल सकता है। नेक्स्ट, आपको जल्द से जल्द अपलाइन बनना पड़ेगा। अगर आपके टीम में वही इस इंडस्ट्री में पैसा कमा सकता है जो खुद एक अपलाइन होता है। अगर आप खुद को अपलाइन नहीं समझेंगे, अगर आप खुद को अपलाइन नहीं मानते हो, जब तक आप डाउनलाइन हो तब तक आप इस इंडस्ट्री में आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। जिस दिन से आपके नीचे एक भी बंदा ज्वाइन हो चुका है उस दिन से अपलाइन हो। और अपलाइन का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्या नहीं है वो सब के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अपलाइन के बारे और अच्छे से आपको जानने के लिए आपका इमीडिएट सीनियर अपलाइन से आप डिस्कस कीजिए और यूट्यूब में भी थोड़ा सर्च कीजिए अपलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं जो जो टॉपिक पे बात करूंगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद सोच लीजिएगा। बहुत सारा और मैं अगर एक एक टॉपिक पे 2-2 घंटा बात करूंगा बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए मैं हिंट दूंगा आपको क्या क्या टॉपिक पे आपको सोचना चाहिए, क्या क्या टॉपिक पे आपको समझना चाहिए, ऐसा क्या टॉपिक है जो आपको ज्यादा जरूरी है, वही टॉपिक आपको मैं सिर्फ याद दिलवाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट हो गया आपका अपलाइन। पहला क्या था आपका गोल सेट। गोल सेट क्या होता है, आपका डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया आपने। नेक्स्ट क्या हुआ, वो डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचने के लिए आप कैसे पहुंचोगे वो आपको अपलाइन आपको दिखाएगा। नेक्स्ट, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। विदाउट एजुकेशन जीरो। विदाउट एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में एक आपको एक अच्छा टॉपिक बताऊंगा, अच्छा लगता है, मैं रोज बताता हूँ, किसी को भी मिलता हूँ, किसी को बताता हूँ। आप मान लीजिए एक ट्रेलर क्या करता है, कपड़ा सिलाता है, काटता है। मैंने एक रोमपेंट दिया उसको, कपड़ा एक प्लेन कपड़ा दिया, वो कपड़े को उसने काटा, काट के फिर धागा से सिलाया, कैंची से काटा, धागा से सिलाया, वो रोमपेंट बना दिया, मैंने पहना। और एक डॉक्टर, डॉक्टर का काम क्या है, वही पेट काटना, ऑपरेशन करना, किडनी में स्टोन है वो स्टोन को निकालना फिर सिलाना। देखने से काम दोनों बराबर है, वही कैंची से कटता है, वही सुई से सिलाता है। यहाँ पे है इंसान, यहाँ पे है कपड़ा। अगर एजुकेशन का जरूरी नहीं होता तो क्या मैं एक टेलर को डॉक्टर की जगह बैठा सकता हूँ? अगर सोचिए आपका ऑपरेशन या आपका घर का किसी का ऑपरेशन एक टेलर करेगा तो कैसा होगा? दोनों में अंतर क्या है, वही बंदा है, वही एक दिमाग, दो हाथ, दो पाँव, एक नाक, दो कान। फर्क सिर्फ इतना है, इसके दिमाग में कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर है, इसके दिमाग में कुछ अलग सॉफ्टवेयर। उसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं एजुकेशन। वो एजुकेशन आपको पावर देता है कुछ करने के लिए, नॉलेज। विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आपको सीखना पड़ेगा। आज गौर कीजिएगा, जितने लीडर्स आप लोग, जितने डायरेक्ट सेलर को जानते हो, चाहे कोई भी हो, आंख बंद करके सोचिए, याद कीजिए, जितने आप डायरेक्ट सेलर को जानते हो पिछले 2 साल से मिनिमम 1 लाख प्लस इनकम कर रहा है, वो कितना एजुकेटेड है? उसको आप कुछ भी सवाल पूछिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे, कुछ भी सवाल, वो फट से आपको जवाब दे सकता है। कुछ भी सिचुएशन उसको मालूम है कैसे हैंडल करता है। कुछ भी बदलाव, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थोड़ा दिन पहले ये अभी प्रॉब्लम एक चल रहा है आपका कोविड-19 का। कितना प्रॉब्लम चल रहा है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में। मगर एक अच्छा लीडर अभी भी शांत है, क्योंकि उसको मालूम है, वो एजुकेटेड है, या में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। एक एजुकेटेड लीडर्स ही एक ही कंपनी या काम कर सकता है। जो एजुकेटेड नहीं है, आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, परसों वो कंपनी। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, किसी ने क्या खूब कहा है, ये ऐसे ही तो नहीं बताया गया है। अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे तो क्रिकेट में अगर सर्टिफिकेट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं सीखना है। विराट कोहली को आप अभी जानते हो, आज से 4 साल 5 साल पहले से वो खेलना शुरू किया, मगर उससे 10 साल पहले से उसने कितना प्रैक्टिस, कितना सीखा। साइना नेहवाल को आप लोग जानते हो, साइना नेहवाल उससे पहले, जब वो साइना नेहवाल इंटरनेशनल लेवल पे वो बैडमिंटन खेला, उससे पहले वो कितना सीखा, कितना सीखा। विदाउट एजुकेशन जीरो। जितना जल्द हो सके समझ लीजिए, मान लीजिए, भरोसा कीजिए मुझ पे, विदाउट एजुकेशन नहीं होगा, सीखना तो पड़ेगा। ये भी एक इंडस्ट्री है, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है इस दुनिया में जिस इंडस्ट्री में आप अगर एक अच्छे लेवल पे, अगर अच्छा आप वहां पे
नेम फेम चाहते हो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे वो आप एक प्लम्बर क्यों ना हो, चाहे एक आप कुछ भी छोटा से छोटा काम, उस काम में भी एक मंजिल होता है जहाँ पे एक अच्छा लेवल होता है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और वो नॉलेज एक दो दिन में नहीं होगा। 3 महीना हुआ नहीं, खुद का टीम का बात करता हूँ, 3 महीना हुआ नहीं, नया नया लड़का आया, पूरा सीखा, पूरा ट्रेनिंग किया, चौथे महीना टीम छोड़ के दूसरे कंपनी ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन किया? पैसा नहीं मिल रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास नॉलेज कमती था। अगर उसके पास सही नॉलेज होता तो वो छोड़ के कभी नहीं जाता, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे एक भी कंपनी नहीं है एथिकल कंपनी जो गाइडेंस, गवर्नमेंट गाइडेंस फॉलो करता हो। ऐसे एक भी कंपनी शायद ही होगा जिस कंपनी में अचीवर्स नहीं है, जिस कंपनी में लाखों रुपया नहीं इनकम करता होगा। हर कंपनी में इनकम करता है, हर कंपनी अच्छा है, तो क्यों कंपनी चेंज करता है? लैक ऑफ नॉलेज। जब इंसानों के पास नॉलेज का कमी होता है तभी ये सब गलती करता है। मैंने भी बहुत सारा गलती किया क्योंकि मेरे पास भी नॉलेज नहीं है। मैं भी हर रोज सीख रहा हूँ। 3 साल हुआ नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, 10 साल सीखने का प्रॉमिस किया हूँ खुद को। बहुत गलती करूंगा, गलती करना मुझे अच्छा लगता है। बहुत टीम बनेगा, बहुत टीम टूटेगा, सिस्टम है इसे। सचिन रोज सेंचुरी नहीं मारता, प्रैक्टिस के बदौलत उसको बहुत चोट आया होगा, फिर भी नहीं छोड़ा, इसीलिए आज सचिन है वो। आज आप थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से टीम छोड़ दिया, थोड़ा कोई टीम आपके नीचे छोड़ने की वजह से आपने ये गलती किया, वो क्यों ये सब गलती होता है? क्योंकि आपके पास सही नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए एजुकेशन बहुत सारा जरूरी नहीं होता। पहला एजुकेशन सेल्स, डायरेक्ट सेलिंग के लिए पहला एजुकेशन सेल्स। दूसरा एजुकेशन आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में एकदम शॉर्टली बताता हूँ। इनिशियल टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या क्या एजुकेशन जरूरी होता है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा चाहिए, बट स्टडिंग बेस पे आपको क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहला सेल्स के बारे आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। और सबको मालूम, सबसे अच्छा बात यह है कि सेल्स, आप बोल सकते हो एक ऐसा चीज है जो हम लोग माँ का पेट से सीख के आते हैं, वो है सेल्स। बाकी और कुछ भी हम लोग सीख के नहीं आता। माँ के पेट से पैदा होने का साथ साथ रोते क्यों? दूध के वजह से। सेल्स है सर, सेल्स है। सेल्स सीखने के बाद नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे। ये इंडस्ट्री सुना था, आसामीज में एक बात सुना था, स्कूल में पढ़ता था, बोला जाता था, जी लाई 12 तार दुपातों पे सीन। यानी जो लाई आगे बढ़ा होगा वो पहले उसका हिस्ट्री जानने से आपको उसका फ्यूचर आप अंदाजा लगा सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्ट्री आपको जानना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहाँ से आया, कैसे फॉर्म हुआ डायरेक्ट सेलिंग, अब तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है प्रेजेंट, और फ्यूचर ये इंडस्ट्री कहाँ तक जा सकता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो अगर आप फ्यूचर पास्ट अगर उसका आप पूरा देख सकते हो तो। पास्ट अगर आप पूरा बारीकी से समझते हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर 3 घंटा इसमें थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, पास्ट आपको पूरा बारीकी से समझ में आ जाएगा। और फ्यूचर के बारे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। बहुत सारे लीडर्स है जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से करोड़ों रुपया कमा रहे, उन लोग का बात आप सुन सकते हो। तो हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो मार्केटिंग प्लान रहा है, ये प्लान क्या है? देखिए, कंपनीज हम लोग को बताता है 2 आदमी जोड़ो, 2500 करो, 50,000 50,000 करो, 3 महीना 6 महीना, जो भी बोलता है ये मार्केटिंग प्लान नहीं है। ये पैसा आपको देने का, आपको क्या करने से आपको कंपनी का फायदा का हिस्सा आपको देगा, वो एक पार्ट है। मार्केटिंग प्लान में जो मार्केटिंग प्लान आपको बोलना चाहता हूं, ये मार्केटिंग प्लान ये है कि कंपनी का जो फायदा का पैसा है, कंपनी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कहां से करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है कंपनी का फायदा से। कंपनी सेल्स करेगा, सेल्स करने से मुनाफा जनरेट होगा, उस मुनाफा से कुछ हिस्सा हम लोग को देगा। तो जो वो कितना में सेल कर रहा है, कितना मुनाफा मिल रहा है, वो मुनाफा को कितना रुपया मुझे दे रहा है, कितना रुपया कंपनी रख रहा है, वो मुनाफा के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, वो मुनाफा किस किस तरीका से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि हाल ही में आपको अखिलेश सर शायद 3 से 4 दिन पहले जो प्रेजेंटेशन किया था, मुझे लगता है वो प्रेजेंटेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत। वो जब तक आप नहीं समझेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप बढ़ोतरी नहीं कर सकते हो।
आपको कंपनी छोड़ना ही पड़ेगा, आज ये कंपनी कल वो परसों वो। क्यों? क्योंकि आपको इंटरनल जो प्लानिंग होता है, वो जो एक्चुअल मार्केटिंग प्लान होता है, वो मार्केटिंग प्लान उस दिन अखिलेश सर मे भी वो प्लान को आपको कभी अगर टाइम मिलेगा, कभी अगर टाइमिंग अच्छा होगा, मे भी कभी किसी को अगर नहीं मालूम तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं भी वो आपको समझा सकता हूँ। एजुकेशन का पार्ट क्या है आज इतना में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हो गया एग्जाम। एग्जाम मीन्स एक्सरसाइज, कोई भी प्रैक्टिस एग्जाम बोल सकते हो। एग्जाम उसमें होता है जहाँ स्कूल कॉलेजों में, प्रैक्टिस होता है जहाँ पे आपको विदाउट सर्टिफिकेट का काम किया जाता है। प्रैक्टिस, आपको एजुकेशन लेना है, सीखना है, सीख के उसको प्रैक्टिस करना है। आपको सीखना है, सीख के 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 प्रैक्टिस करना है। वही काम करना है और दूसरा काम नहीं है। आपको सीखना है, सीख के प्रैक्टिस करना है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर दुनिया का क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, फिर भी सर दिन में मिनिमम 4 घंटा उसी बैट, उसी बॉल, उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करता है। हम लोग का लीडर्स अगर 50,000 इनकम आ गया ना, तो फील्ड में जाना छोड़ देता है। बड़ा लीडर हो गया, बड़ा। सचिन अगर प्रैक्टिस करना छोड़ देगा तो क्या वो अच्छा प्ले कर पाएगा? अगर सोनू निगम अगर प्रैक्टिस करना छोड़ देगा, क्या वो अच्छा गाना गा पाएगा? अच्छे लीडर्स, अच्छा परफॉर्मर जो प्रोफेशन होता है, अच्छा जो परफॉर्म करता है, उन लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत 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 ज्यादा। सुना था कहीं में, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, हालांकि परफेक्ट कुछ होता नहीं है, बेटर होता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप बेटर होते जाएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आज मेरा फर्स्ट है वेबिनार, मैं आपको बोलता हूँ आज से 2 महीना बाद दिखेगा मैं वेबिनार कितना सुंदर से करता हूँ। आज मेरा वेबिनार करने के लिए आज मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है, बट मैं ये रोज प्रैक्टिस करते रहूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूंगा। आज से 6 महीना बाद, आज ये रिकॉर्डिंग आप लोग रख लीजिएगा, कितना सुंदर होता है देखिएगा। आज से 6 महीना, 3 महीना बाद बुरा होगा, खराब होगा। खराब होने से आप उसको छोड़ना नहीं है। अब पहला दिन सचिन तेंदुलकर 6 नहीं मार पा रहा था, 4 नहीं मार पा रहा था। हर कोई, आप भी शायद, आप भी जो काम करते हो, आपको अगर आप साइकिल चलाते हो, आप कुछ भी करते हो, सो याद कीजिए पहले दिन आपको अच्छा नहीं होता, बट उसी को प्रैक्टिस करते 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 आज आप उसको बेस्ट नहीं होने से भी कितना अच्छा आप कर पाते हो। कुछ भी हम बोल नहीं पाते थे जब छोटे थे, हम लोग बोल नहीं पाते थे। हम लोग को इंडियन में एक प्रॉब्लम है, हम लोग इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। जो ट्राइबल से अरुणाचल में, उन लोग अच्छे से आसामीज नहीं बोल पाते क्योंकि उन लोग जो आसामीज का प्रैक्टिस नहीं करते, उन लोग ज्यादा हिंदी बोलते हैं। बंगाली आदमी अच्छे से बंगाली बोल पाते क्योंकि अच्छा बंगाली, वो रोज बंगाली बोलते हैं। आसामीज आदमी रोज आसामीज बोलते हैं, इसलिए आसामीज अच्छा बोलते हैं। इंग्लैंड का आदमी अच्छा इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि उन लोग रोज इंग्लिश बोलते हैं। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पहले सीखना है, इसके बाद उसी को प्रैक्टिस करना है। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते 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 वही प्रैक्टिस आपको एक्सपीरियंस में बदल जाएंगे। आज सचिन तेंदुलकर को आप कैसे भी बोल दिया जाता है, वो उसको हिट कर सकता है। आज ध्रुवज्योति कश्यप के पास जैसे भी लीडर्स आते हैं, उसको बैठा दीजिए, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। 99% चांसेस वो ज्वाइन करेगा। आज सिद्धार्थ सिंह सर के साथ किसी को भी बैठा दीजिए, आज दीपक सूद सर के साथ किसी को भी बैठा दीजिए, आज गौतम बाली सर के साथ किसी को भी बैठा दीजिए, आज देके सारंग सर के साथ किसी को भी बैठा दीजिए। एक्सपीरियंस, हाँ, हालांकि एक्सपीरियंस 2 टाइप ऑफ होता है। हम लोग के पास जो एक्सपीरियंस है वो बैड एक्सपीरियंस है। हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से जो एक्सपीरियंस होता है वो बैड एक्सपीरियंस होता है। आप अगर रोज सीखते हो, रोज सीखते सीखते रोज उसको प्रैक्टिस करते हो, आप अगर 3 साल 5 साल, जो बंदा रेगुलरली 5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सीख रहा है, आप मुझे एक बंदा दिखा दीजिए पूरा धरती में जिसके पास पैसे की कमी हो, जिसके पास नेम फेम कुछ भी कमी हो। 5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2001st सेंचुरी के बेस्ट क्यों बोला जाता है? इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिस इंडस्ट्री में आप 5 साल पूरा 100% मेहनत करने के बाद 100% गारंटी या 100% बोल सके कि इस इंडस्ट्री में 5 साल डॉक्टर बनने के बाद भी आपका कोई गारंटी नहीं है कि आप महीना में 10 लाख कमा पाओगे। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, आप 5 साल रोज
रोज, ज्यादा नहीं, 5 घंटा काम कीजिए। आफ्टर 5 आवर्स आपका पर मंथ इनकम मिनिमम 10 लाख रहेगा। मैं नहीं बता रहा हूँ, हिस्ट्री बता रहा है सब। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितना बंदा इनकम कर रहा है, सबका हिस्ट्री खोल के देखिए। और जो बंदा बोलता है कि मेरा 5 साल पुराना एक्सपीरियंस है, मैं 5 साल 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास अभी चेक नहीं है, उन लोग का हिस्ट्री खोल के देखिए। वो बोलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे हूँ, वो घर बैठे आप डाउनलाइन को फोन करता है, वो फील्ड में खुद नहीं जाता। एक्सरसाइज नहीं है, एक्सेस नहीं होने की वजह से उसके एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस में बदल जाता है। तो एक्सपीरियंस मायने रखता है, आप कितने ज्यादा सीखे हैं और उसको सीख के कितने ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट किया है। आप कितना ज्यादा फील्ड में जाके, देखिए फील्ड में जाना क्यों जरूरी है। आपको अगर स्विमिंग करना है, आप किताब पढ़ के स्विमिंग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आप जान पाएंगे। मगर अगर आपको आगे अच्छा स्विमर बने, आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। सेल्स का बिजनेस है, फील्ड में आपको जाना ही पड़ेगा, सेल्स करना ही पड़ेगा। आप अगर खुद सेल नहीं करते हो, आपको वैसा सवाल का फेस नहीं करते हो, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारा आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप फेस नहीं करते हो, आपके टीम को आप क्या सिखाओगे? आपके टीम को अगर आप अच्छे से नहीं सिखाएंगे, आपको टीम स्ट्रांग नहीं होगा, टीम स्ट्रांग नहीं होगा, टीम से बिजनेस जनरेट नहीं होगा, टीम से बिजनेस जनरेट नहीं होगा, वही आपका होगा बैड एक्सपीरियंस। ज्वाइन करके 2 महीने इस कंपनी में दौड़ा, 4 महीने उस कंपनी में दौड़ा, 3 महीने उस कंपनी में दौड़ा, 6 महीने इस कंपनी में दौड़ा, हो गया 1 साल। 1 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, कितना चेक है? 300 रुपया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है, ऐसा बहुत क्लियर है। ओनली 15 से 20 प्लेयर है इंडिया में जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बाकी करोड़ों प्लेयर है जो बेकार है। इसका मतलब ये नहीं है क्रिकेट इंडस्ट्री खराब है। बहुत सिंगर्स है, बहुत सिंगर है, सोनू निगम के सामने में बहुत सिंगर फेल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगिंग इंडस्ट्री खराब है। हर इंडस्ट्री पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप अगर करेंगे तो उस इंडस्ट्री का अब जो मैक्सिमम लेवल है वो आप पहुंच सकते हो। अगर उस लेवल पे पहुंचना है तो उस इंडस्ट्री का जो इनिशियल जो इम्पोर्टेंस है वो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? सबसे बड़ा चीज एथिक्स। सबसे बड़ा चीज, आपके पास आपने पहले क्या क्या सेल्स के बारे में सीखा, इसके बाद आपने गोल सेट किया, इसके बाद आपने अच्छा अपलाइन चुना, अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस किया, अपलाइन ने आपको रास्ता दिखा दिया, आप उस रास्ते से चल रहे हो। अपलाइन ने रास्ता दिखाया, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप तब अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है यानी आप एक अच्छे लीडर बन चुके हो, आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, आपके पास रिस्पेक्ट है, आपके पास फ्रीडम है, मगर आपका एथिक्स अगर अच्छा नहीं है, सब कुछ 1 सेकंड में जीरो हो सकता है। बड़े बड़े बहुत आप खुद देखे होंगे, बहुत अच्छा अच्छा दुकानदार, बहुत अच्छा अच्छा बिजनेसमैन, बहुत अच्छा अच्छा सिंगर, बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर, बहुत अच्छा डॉक्टर्स, बहुत अच्छे इंजीनियर्स, ठीक है, आपका स्किल का वजह से आपको जॉब मिलता है, आपका बिहेवियर का वजह से वो जॉब से इंसानों को लात मारा जाता है। स्किल का वजह से, आपका नॉलेज का वजह से, आपका एक्सपीरियंस का वजह से आपको तो वो सब कुछ मिल गया, मगर वो एथिक्स का वजह से वो सब कुछ खो चुका है। ये एथिक्स ऐसा एक चीज है, आप हमेशा, ये एथिक्स में मेरा खुद का जिंदगी में बहुत काम करना बाकी है। सिर्फ एथिक्स के नहीं, मैं यहाँ में जितना बात किया हूँ ये सब मेरा जिंदगी में मैं कमी सोचता हूँ, इसीलिए मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और इसीलिए मैं ये सब कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं उस स्टोरी के बारे आगे चलता हूँ, जिस स्टोरी आपको बहुत कुछ अभी सिखा सकता है। बहुत शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 1 घंटा पास हो चुका है, 15 to 20 मिनट्स और लूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे ज्वाइन किया था 10 अगस्त 2017। जब मैंने ज्वाइन किया हुआ था तब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मुझे मालूम था। स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा, जो इम्पोर्टेंस है मैं थोड़ा डिस्क्राइब करके बोलूंगा। एक दिन शाम का वक्त था, मैं बैडमिंटन खेल रहा था। बैडमिंटन खेल के मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा किसी का, दोस्त था, दोस्त ने मुझे बताया एक इंसानों से मिलना है, चलो कुछ काम है मिलते हैं। तो मैंने आया, आके मिला, मैंने जब मिला, जब मैंने फर्स्ट लुक देखा उस इंसान का, जो उसको मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे जिसने लाया, उसको मैंने देख के ही मैं
होश उड़ गया था मेरा। वो एक काले ब्लेजर में बैठा हुआ था, जो मेरा सपना था एक अच्छा यूनिफॉर्म पहनना। हालांकि मैं दुकान करता था, दुकान करने का वजह से कभी अच्छा कपड़ा मैं पहन नहीं सकता था। अच्छे कपड़े पहन के आप दुकान में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि मेरा बिजनेस ही ऐसा था। तो शौक तो बहुत था कि मैं अच्छा यूनिफॉर्म पहनूं, अच्छा यूनिफॉर्म पहन के काम करूं, अच्छा ब्लेजर वगैरह अच्छा खरीदा भी हुआ था, बट पहनने के लिए जगह नहीं था। जिस दिन उसको देखा तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत खतरनाक था। इम्प्रेस हो चुका था उसका यूनिफॉर्म देख के। मैंने उसके साथ बैठा, तो बातचीत हुआ, मुझे बताया प्लान वेस्टिज का। तो मैंने पूछा, उसने मुझे बताया उसका उस टाइम का इनकम था लगभग 1,80,000 1,90,000 आसपास था। सॉरी 169 था, 1,69,000। और उनके पास 2 गाड़ी था तब तक, और 2-3 फॉरेन ट्रिप मार चुका था। और हाल ही में तभी वो सर दुबई का एक ट्रिप मार के आया था, 1 हफ्ता 10 दिन पहले का बात है। उस टाइम का पहले का बात है। तब मैंने सर मुझे बताया, देखो मैं दुबई ट्रिप मारा हूँ, देखो मेरा बस गाड़ी है। सर का पे आउट चेक मुझे दिखाया। तो मैंने बोला सर सब कुछ ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंप्रेस हुआ। सर करना क्या पड़ेगा बताओ, क्योंकि मैं भी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। मैं भी बोल चुका हूँ, मैं कुछ, मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। किसी को ठगना नहीं चाहता हूँ, किसी को लूटना नहीं चाहता हूँ। लीगली अगर कुछ रास्ता है सर मुझे दिखाओ, मैं भी चाहता हूँ आपके जैसा बनना, मेरा जिंदगी की ख्वाहिश है। मैं 10-15 मिनट ऐसे बोला, सर देखते रह गया मेरा। मैंने ऐसे बोला सर, आंख बंद करके मेरा मुंह से सिर्फ निकलते रहा, सर मुझे भी बनना है ऐसा, मुझे भी पैसा का, मुझे बहुत गाड़ी मेरा शौक है, मुझे घूमना बहुत शौक है, मुझे भी अच्छा कपड़ा पहनना बहुत शौक है। तब मुझे सर बताया, देखो ये बिजनेस में एफएमसीजी प्रोडक्ट है, ये बिजनेस में फूड सप्लीमेंट है, जो हम लोग को सेल करना पड़ता है, और ये सेल करने से ऐसा ऐसा चेक मिलता है। तो मुझे हंसी आया, साबुन तेल बेच के लाखों रुपया कमाना। कार बुक एक दिखाया, तो मैंने सर को बोला, सर मैं बाय प्रोफेशनल मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है मेरा पास। मैं कंप्यूटर के ऊपर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है। ये सब फोटो वोटो, मेरा दुकान में प्रिंटिंग उंटिंग करता था, फोटो एडिटिंग का काम मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। तो ये सब मुझे मत दिखाओ, क्योंकि ये सब फोटो मैं खुद प्रिंट कर सकता हूँ। ये सब जो कार बुक दिखा रहे हो, ये जो कार बुक मैं खुद बना सकता हूँ। व्हाट्सएप में मुझे दिखा रहा था स्क्रीनशॉट, किसी का पे आउट चेक दिखा रहा। तो मैंने बोला सर ये सब मैं खुद बना सकता हूँ, तो ये सब बता के फायदा नहीं है, आप करते क्या हो बताओ। तो उसने मुझे बताया, देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, यहाँ से कंपनी से प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को दिया जाता है, ऐसा ऐसा सेल है, ऐसा ऐसा आप टीम बनाओगे। मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैंने बहुत बोला सर क्या सच्चाई है बताओ, मुझे भरोसा नहीं हुआ। तो मैंने सर के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट लगा। सर मुझे बताया, तुमको अगर भरोसा नहीं है, मगर सर मुझे क्या देखा नहीं मालूम, सर को भरोसा हो गया था ये लड़का काम करने वाला है, इसीलिए सर मेरे साथ आर्गुमेंट भी कर रहा था, मुझे समझा रहा था। तो मैंने सर मुझे बोला, देखो तुमको अगर भरोसा नहीं है, हाल ही में 15 दिन के बाद गोवा में एक ट्रेनिंग सेशन है, अगर आप जाना चाहते हो चलो, जाके देख के आओ, समझ के आओ, अगर आपको अच्छा लगे तब आप करो। तो मैंने सर को बोला, सर गोवा तो उसी वक्त हम लोग का यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, जिसके वजह से मेरा दुकान बंद था, 3 महीना लगेगा दुकान खोलने के लिए। तो मैंने सोचा चलो गोवा घूम के आता हूँ। तो सर ने बोला, मैंने सर को बोला, तो सर आने जाने का टिकट कौन पे करेगा? तो बोलते खुद देना पड़ेगा। मैंने बोला पागल सोचा है क्या? 15 दिन है, अभी फ्लाइट का टिकट कराऊंगा तो लगभग 15-15 हजार 30 हजार रुपये टिकट में जाएगा, आने जाने का फिर, और टिकट एंट्री फीस 7 हजार रुपया मांग रहा था मुझसे, ट्रेनिंग। तो 30 हजार, 7 हजार, 37,000, 10 हजार रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, 47,000, फिर 50 हजार का तो एक्सपेंडिचर है। तो ये क्या मेरा मुफ्त, मेरा पॉकेट से करूंगा? तो सर बोला, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो पूरा पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा, अगर सेटिस्फाइड होते हो तो आप ज्वाइन करके काम करना। तो मैंने सर को उल्टा पुल्टा बोल के आ गया घर पे। रात भर में नहीं सो पाया। सर मुझे एक चीज बोला था, कितना कॉन्फिडेंस से बोला था, अगर तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आपको मैं पैसा वापस कर दूंगा। तो मैंने सोचा, सर मुझे पैसा वापस करेगा 50 हजार रुपया, मैं अगर काम भी नहीं करूंगा, ऐसा क्या है वहां में, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है सर के पास? तो सर का गाड़ी, सर का ड्रेसिंग सेंस, सर का बात करने का तरीका देख के मैं पागल था। मैंने गोवा गया, गोवा जाके वहां पे देखा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में फर्स्ट टाइम। एक 5 स्टार होटल पे एक ट्रेनिंग सेशन था, वहां पे गौतम बाली सर से मिला, सीधा सिंह सर से मिला, दीपाली पत्रावाला मैडम से मिला, बहुत सारे लीडर से मिला। तो उन लोग को देख के मुझे लगा, हाँ यहाँ पे तो पैसा है, पक्का उन लोग कोई 2 नंबर ही काम करता होता होगा।
कोई 2 नंबरी काम है नहीं, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो वहां पे मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया। लीडर्स लीडर्स मीट था, फर्स्ट टाइम था, वो प्रोग्राम का नाम मैं भूल चुका हूँ, जो भी हो। तो फर्स्ट टाइम वो मीटिंग था, तो आदमी लोग सोचता था कि मैं इतना छोटा लड़का, उस टाइम का यूथ एम्पावरमेंट कुछ होता नहीं था, तो इतना छोटा लड़का, क्योंकि वहां में जितना ट्रेनिंग पे आदमी लोग गया हुआ था, किसी का भी इनकम 1 लाख से नीचे का था नहीं, सबका 1 लाख से ज्यादा था। तो इंसान सोचा कि शायद मेरा भी 1 लाख से ज्यादा इनकम है क्या। तो आदमी लोग मुझे सर सर बोलता था, मुझे अच्छा लगता था, मुझे सर सर बोलता है, तो मेरा इनकम नहीं। आदमी लोग मुझे आके पूछता है कब ज्वाइन किया, क्या बात है, तो मैं इतना कुछ नहीं बोलता, सर मुझे बोलने भी नहीं देता, सर कुछ कुछ बोलता था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है, 2 नंबर का कुछ होता हुआ। तो मैंने घर आया, रिटर्न आया, आके मैं सर को फोन किया, सर मुझे समझा दो है क्या चीज। मैंने गुवाहाटी गया, जाके मैंने समझा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, समझ के मैंने काम शुरू किया। 2017 10 अगस्त से 2018 दिसंबर 26 दिसंबर में गाड़ी खरीदा कंपनी का पैसा से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पैसा कमा के, उसी कंपनी का पैसा से 67,000 68,000 मेरा पॉकेट से देना पड़ रहा था, डाउन पेमेंट के लिए कमती हो रहा था, बाकी पैसा मैं कार फंड का पैसा से दिया। हर कोई कर सकता है अगर आप चाहते हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन का काम क्या होता है, अपलाइन क्या करता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा जो अपलाइन था, उन्होंने मुझे गाड़ी खरीद के नहीं दिया। जब गाड़ी खरीद रहा था उस दिन डाउन पेमेंट के लिए कम नहीं था, तो सर मुझे 10,000 रुपए दिया था, जो भी हो। तो उसने मुझे दिखाया करना क्या है। यहाँ पे होता क्या है, अपलाइन डाउनलाइन का बिजनेस का लालच में उसको महीना का एंड पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हम लोग के यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर आदमी टीम को ज्वाइन करता है, सोचता है हाँ ये टीम तो आ गया, अभी तो टेंशन नहीं है, ये तो बहुत बिजनेस देगा। नहीं होता है सर ऐसा। आप लोग सोच रहे हो शायद टीम में अगर 1 लाख सपोर्ट मिलता, एक अगर अच्छा लीडर्स आता नीचे में, अगर एक लीडर अच्छा को ज्वाइन कर देते, वो बिजनेस देगा, पैसा आ जाएगा। नहीं होता है वैसा। लीडर्स आपके नीचे अच्छा अच्छा लीडर्स काम करेगा। मैं अभी खुल के बताऊंगा आपको, अच्छा लीडर ज्वाइन करने से होता है क्या है, समझ पाएंगे आप अच्छा से अभी। तब मैंने काम किया, अच्छा काम कर रहा था। उस टाइम को मेरा पास, जब मैंने वेस्टिज क्वाइट किया, शायद जब मैंने लास्ट मंथ का मेरा इनकम था 64,000, लास्ट मंथ का वही मेरा हाईएस्ट चेक था। और उस मंथ को मैंने काम नहीं किया था, उसका लास्ट मंथ ही मैंने क्लोज कर चुका था। तो मेरा कॉम्प्लेन होने के बाद जिस मंथ को मेरा मतलब आईडी डीएक्टिवेट हुआ, उस मंथ का इनकम था 64,000। तो जो भी हो, तो उस टाइम को मैंने वेस्टिज क्यों क्वाइट किया, क्योंकि जब मैंने देखा मेरा इनकम तो आ रहा है, और मैं विद इन 1 ईयर मेरा चेक लगभग 1 लाख से 1.5 लाख का बीच में हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा जिस जिस जगह में, जिस जिस एरिया में मेरा बिजनेस था, तवांग में था, हम लोग के घर में एक बहुत बड़ा एरिया था, अरुणाचल पे था। मैंने सोचा जो जो बंदा मेरे नीचे काम कर रहा है, इतना दिल से, इतना ध्यान देके, इतना मेहनत कर रहा है, उन लोग को इतना बड़ा बड़ा एरिया कहाँ मिलेगा? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में आपको इनकम करने के लिए आपको एक अच्छा बड़ा सेल्स देना पड़ेगा, और बड़ा सेल्स देने के लिए आपको बहुत इंसान का जरूरत है, क्योंकि वेस्टिज का प्रोडक्ट हर कोई नहीं खरीदता। वेस्टिज का प्रोडक्ट का जो प्राइस पॉइंट है, ये दिखेगा। वेस्टिज अभी जितना भी शहर एरिया है, शहर एरिया में वेस्टिज का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, खाली है तो गांव एरिया में, और गांव एरिया का इंसानों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वेस्टिज का प्रोडक्ट एफोर्ड कर पाए। तो मैंने सोचा गांव गांव एरिया में मेरा टीम बाकी है, तो गांव गांव एरिया में जो मेरा टीम है, उन लोग पैसा इनकम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन लोग सेल जनरेट नहीं कर पा रहा है। सेल क्यों जनरेट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वहां का इंसान एफोर्ड नहीं कर पाता है। आदमी लोग को एक साबुन बेचने के लिए मुझे कारबुक दिखाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, शॉप योर क्या, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। और 3 महीना 6 महीना तो चेंज करता है शॉप, उसके बाद उसका हस्बैंड उसको गाली देते हैं, उसका वाइफ को, क्या ये सब जगह में फंसा दिया तुमको, जाने से तेरा नजर से देखता है। 10,000 रुपये का सामान खरीदा, बोलते 3,000 रुपये में मार्केट में मिलता था। तब धीरे 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 मेरा दिमाग में भी छाने लगा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, इंडस्ट्री में तो आया हूँ, इंडस्ट्री में तो बहुत लोग पैसा इनकम कर रहे हैं, मगर ऐसे तो नहीं होगा। हाँ वेस्टिज में कर पाएंगे अगर मैं ओनली सिटीज में बिजनेस करता हूँ, और सिटीज तो खाली नहीं है अभी, सिटी हर जगह में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स घुस चुका है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि एक दो बंदा से तो बिजनेस होने वाला है नहीं। बिजनेस करने के लिए आपको बड़ा टीम होना पड़ेगा, और बड़ा टीम बनाने के लिए बड़ा इंसान चाहिए। इतना ज्यादा इंसान में सिटीज एरिया में कहाँ से लाऊं? उसी वक्त
पलाश पाठक सर ने मुझे ओके लाइफ केयर का प्रेजेंटेशन दिखाया, और जब मैं ओके लाइफ केयर का प्रेजेंटेशन देखा तब मैंने टीम के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस किया। डिस्कस करके मैंने शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। जब मैंने शिफ्ट किया, अभी से मेरा जिंदगी का डायरेक्ट इंडस्ट्री का सच्चाई जो है, जो एक्सपीरियंस है, अभी से शुरू होने वाला है। जो टॉपिक है आज का मेन एजुकेशन, आज का जो टॉपिक है। तो जब मैंने ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया, मेरा जो पास्ट जो मेरा रिकॉर्ड्स था वेस्टिज का, जब मैं ट्रेनिंग में जाता था तब लीडर्स मुझे देखते थे, बात करते थे, मुझे इतना बात करना नहीं आता। डायरेक्टर था, 10-12 हजार रुपया कमाता था। नेक्स्ट मीटिंग में जाता था, गोल्ड डायरेक्टर हो गया, सिल्वर डायरेक्टर हो गया। नेक्स्ट मीटिंग में जाता था, गोल्ड डायरेक्टर हो गया। नेक्स्ट मीटिंग में जाता था, स्टार डायरेक्टर हो गया। नेक्स्ट मीटिंग में गया, कार ले लिया, अवार्ड फंक्शन में गाड़ी का रिकॉग्नाइज किया। तो लीडर्स मुझसे थे, अरे 2 साल 3 साल से काम कर रहा हूँ, बोलता है मेरा हर लीडर्स बोलता है चेक है, मगर एक्चुअली में चेक होता नहीं है। बोलता है मेरा 50,000 का इनकम है, 50,000 का इनकम 3 साल पहले था, कभी था, उसी को बोलता है, मगर तेरा कैसे हो रहा है ऐसा? तो फॉलो करता था थोड़ा बहुत। जब मैंने ओके लाइफ केयर में शिफ्ट किया, जब मैंने फेसबुक में अपडेट, खुद ब खुद बहुत लीडर्स मेरे पास आया, खुद ब खुद। मैंने किसी को फोन नहीं किया, किसी को प्रेजेंटेशन नहीं किया। कोई कोई लीडर्स को फोन किया तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा बात है। मैंने जब समझाया तो उन लोग को भी जिसको समझ में आया, कोई कोई तो समझ में नहीं आया, खुद ब खुद आ गया, मुझको देख के आ गया। कोई कोई वहां में पैसा इनकम नहीं कर पा रहा था, नया कंपनी है, सोचा 2 लाख है, 1 लाख तो फ्री में मिल जाएगा, 1 लाख करने से हो गया। कोई लोग सोचा प्रोडक्ट का दाम कमती है, ज्यादा सेल होगा, वो सब देख के आ गया। कोई कोई समझ के आया। तो 10% आदमी समझ के आया, 10% आदमी ऐसे ही आ गया। 10% आदमी प्रोडक्ट का दाम कमती होने का वजह से आया। 10% आदमी सोचा फ्री लेग मिलेगा, 10% आदमी आया, सोचा बिना तो बिजनेस करेगा, किसी का नीचे करना पड़ेगा, वैसा आ गया। जिसका वजह से आके 70 to 80% लीडर्स काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? 2-3 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम था प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम था प्रोडक्ट मंगाने के लिए 25-30 दिन चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम था एक नया कंपनी पे जीरो से कैसे शुरुआत करता है, हम लोग को किसी को भी नहीं मालूम। चौथा प्रॉब्लम था मेरा इतना बड़ा टीम बन चुका था, मेरा पास इतना बड़ा टीम का एक्सपीरियंस है नहीं, कैसे उसको लीड करना पड़ता है। मैं तो था 6-7-10 डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर को लीड करता था, 10-12 लीडर्स घर का आसपास है, रोज बातें करता था, मजाक मजाक फुर्ती फुर्ती में अच्छा लगता था काम करे। मगर यहाँ पे जब ओके लाइफ केयर में इतना ज्यादा लीडर्स तादाद में आ गया, आने के बाद इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो लीडर्स कोई कंपनी में क्या करता है, सब जब प्रॉब्लम्स आया, धीरे 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 जब देखा कि पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि हर कोई सोचता था कि काम नहीं करके पैसा आएगा। जिसको मालूम था कि काम करके पैसा आएगा उन लोग तो है। जो लीडर्स आया था लालच में, जो लीडर्स आया था कि मुझे लेग मिलेगा, जो लीडर्स कुछ प्रॉब्लम मिलने का वजह से आया था, जो लीडर्स यहाँ पे बेहुदा सपना देख के आया था, उन लोग लीडर्स आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। आज वो चंद लोग हैं मेरे साथ जो लीडर्स खुद पे भरोसा करता है, जो लीडर्स खुद पे भरोसा है काम करने के लिए, जो खुद सीखना चाहता है, जो लीडर्स खुद करने के लिए हिम्मत रखता है, वो लीडर्स है। वो लीडर्स काम कर रहा है, पे आउट नहीं बन रहा है, उसका वजह मैंने आपको बताया, क्योंकि हम लोग का टीम में अभी तक पहला बात अपलाइन नहीं है। विदाउट अपलाइन टीम रन हो रहा है। कब आएगा अपलाइन, कब मिलेगा अपलाइन, नहीं मालूम। तो इसका बारे आज ही शायद मैं फिर शाम को एक वेबिनार करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट आदमी के साथ, क्योंकि विदाउट अपलाइन ये बिजनेस रन नहीं कर पाऊंगा। और मैं जहां तक मैं सोचता हूँ, मैं खुद को एज ए अपलाइन सोचता हूँ, फील्ड पे उन लोग को भरोसा, उन लोग को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर में, मेरा सर पे पानी गिर रहा है तो मेरा सर का नीचे पानी जाएगा ना। मेरा यहाँ पे छाता पकड़ने वाला नहीं, और मुझे इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं कि मैं अगर पहले से 10 लाख 15 लाख इनकम किया होता, मैं पहले से अगर 2-3 कंपनी में काम किया होता, तो शायद मेरा पास एक्सपीरियंस इतना होता। बट अभी मेरे पास जितना मैं ठोकर खा के सीखा हूँ, हाँ अभी मैं बता सकता हूँ एक नया कंपनी में जाके कैसे काम करना पड़ता है, वो मैं अभी बता पाऊंगा। एक आदमी को सिखा सकूंगा कि एक नया कंपनी में कैसे काम किया जाता है। मगर जब मेरा पास कुछ भी नॉलेज नहीं था, जिसका वजह से ये टीम आज नॉर्थ ईस्ट में जो एंटायर टीम आज है, जो नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस जो होना चाहिए था, कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी नाकामयाब यहाँ पे ऐड होता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ओके लाइफ केयर अगर
कुछ नहीं है उसमें मेरा भी गलती है। मैं खुद खुद को जिम्मेदार मानता हूँ नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस को लेके। और मैं इतना भी बोलता हूँ, ये नाकामयाबी बहुत फायदा करेगा कल। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सच में करियर बनाना है तो आपको नाकामयाबी से ही निकलना पड़ेगा। कामयाबी से निकल के आप कभी बड़ा मंजिल हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अगर मालूम ही नहीं है यहाँ का पेन क्या होता है, तब तो गेन कैसे होगा आपको कभी नहीं मालूम चलेगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि क्योंकि मुझे इतना जल्दी ये सब प्रॉब्लम फेस करने के लिए मौका मिला। अगर मुझे अभी ये 2-3-4 हजार का टीम में ये प्रॉब्लम मिला, अगर मुझे आज से 5 साल बाद मिलता, जब मेरे पास 3 लाख का प्रॉब्लम टीम होता, तब मेरे लिए बहुत लॉस होता या तब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होता। तो मैं अभी फायदे पे हूँ, इतना छोटे टीम में इतना ज्यादा सीखने को मिला। अभी पॉइंट क्या मेरा है, पहला पॉइंट है कि अपलाइन आपको आपको खुद अपलाइन बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। एक अपलाइन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे बनना पड़ेगा, वो मुझे नहीं मालूम, आपको खुद सीखना पड़ेगा, मगर आपको एक अपलाइन बनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको गोल सेट करना ही पड़ेगा। आपको खुद गोल सेट करके आपको टीम को आप गोल सेट जब तक नहीं कराएंगे तब तक आपका काम शुरुआत ही नहीं होगा। तीसरा, एजुकेशन पे फोकस कीजिए। जहां तक मैंने देखा है या जहां तक आप लोग को भी मालूम है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ओके लाइफ केयर में जिस तादाद पे एजुकेशन हम लोग को दे रहा है, तो शायद ही कोई देता होगा। मुझे इतना ज्यादा कंपनीज के बारे नहीं मालूम, मैं वेस्टिज से आया हूँ, वेस्टिज का भी एजुकेशन बहुत अच्छा था, बट वेस्टिज हमेशा वेस्टिज के अंदर ही सिखाता था, बट ओके लाइफ केयर ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में सिखाया जाता है। जो बंदा 3 महीना 4 महीना ओके लाइफ केयर का ट्रेनिंग अटेंड किया होगा, अखिलेश सर लोग का जो वेबिनार होता है, डीके सारन सर का या दिगंत सर का या ध्रुवज्योति कश्यप सर का, वो लोग 3 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले दूसरा कंपनी में काम करने का वजह जितना नॉलेज है, 3 महीना में ओके लाइफ केयर में इतना नॉलेज मिलेगा, मेरा ये मानना है। तो नॉलेज के हिसाब से ओके लाइफ केयर बहुत आगे है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अभी करने के लिए जितना तक मुझे मालूम था, पहले में हम लोग एक्सरसाइज करते थे फील्ड पे, बट अभी तो फील्ड पे जाना नामुमकिन सा है और आप लोग जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप लोग डिजिटली जितना हो सके कीजिए, वहां पे एक्सरसाइज करना पड़ेगा वेबिनार के द्वारा। कैसे, क्योंकि विदाउट वेबिनार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना अभी नामुमकिन सा है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी एक्सरसाइज यानी कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्ट्री, जो कुछ नॉलेज में बोला था वो सब बोल के वेबिनार में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हो गया आपका एक्सपीरियंस, तभी होगा जब आप इस सब को बार बार दोहराते रहेंगे। नेक्स्ट हो गया एथिक्स, आपका सोचने का तरीका, आपका बिहेवियर। आप कभी झूठ मत बोलिएगा, झूठ बोलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेलियर्स आदमी। अगर आपके मुंह से कभी झूठ निकल गया, यानी आप इस इंडस्ट्री में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। कभी किसी लीडर्स को ज्वाइन करने के लिए कभी झूठ मत बोलिएगा, कभी भी नहीं। अगर आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ज्यादातर लीडर झूठ बोल के ही उसका जिंदगी बर्बाद करता है। ज्यादातर लीडर्स उसको झूठ बोलता है, आ जाओ मैं ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा वो दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हो गया, किसी को भी आप नीचे ज्वाइन करते हैं तो कोई लीडर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो लीडर्स कब तक काम नहीं करेगा, जब तक आप उस लीडर्स को आप भरोसा नहीं दिला सकते हो क्या कि मैं तेरा अपलाइन के लायक हूँ। मेरे साथ यही हुआ, मेरे टीम पे बहुत लीडर्स आया था मगर काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहला बात, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता है क्या है, यहाँ पे लेवल दिखाया जाता है। लेवल हम लोग जब देखते हैं, कोई अगर पाल्स है, कोई अगर क्राउन है, कोई ब्ला ब्ला जो जो नाम है, वो नाम से हम लोग उन लोग को बहुत बड़ा इमेजिन करते हैं कि वो ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, मगर आखिरकार उसका लास्ट 6 मंथ का चेक उसको बताएगा वो कैसा है। तो जब भी एक अच्छा लीडर्स को आप मिलते हैं, सच्चाई से बात कीजिएगा। कोई भी इंसान जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जोड़ते हैं तो वो बहुत सपने का साथ जोड़ता है, मगर वो सपना पूरा करने का 100%, अगर वो सपना पूरा नहीं हो रहा है, वो मेरे वजह से, वो आपके वजह से। तो आशा करता हूँ आज का जो मैंने बताया यहाँ से आपको शायद कुछ टॉपिक मिला। अगर ये टॉपिक को आप अगर सोचते हो कि इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे आप और ज्यादा देखिए, यूट्यूब में और ज्यादा डिस्कस कीजिए। अगर ये सब टॉपिक में आप अगर अच्छे से क्लियर कर पाओगे तो मेरे साथ 3 साल में जो हुआ वो आपके साथ नहीं होगा। और 3 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कम नहीं है सर, 3 साल में बहुत कुछ कर सकता है। तो थैंक यू सो मच
सबको आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं 1 घंटा आपके सामने में बात कर पाऊं। आप लोगों ने सुना, इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। और आप लोग को इतना भरोसा देता हूँ, इतना विश्वास देता हूँ, आने वाला 3 महीना में मैं इससे भी बेहतर बोलूंगा, इससे बेहतर करूंगा, और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you for watching.